Hello student, welcome to subject programming in C. This is common subject for COIF. Okay, from today we see the practical of this subject. Subject code is 22226. Myself Minal Chaudhary. We already see the examination scheme in the theory lecture, and for practical we again see for practical it is for 25 for end semester exam and 25 for PM. Okay, so total 50 marks for the practical. Okay, so let's see. We start the first practical. This is the manual of our subject. Programming in C. Okay, now first practical is C program using constant variable arithmetic expression. These all are the terminology in C that we already that we see in theory part also in some next lecture. Okay, but you simple understand the practical. First we see the which software is required to execute the C programs. Okay, so first of all, very important, you download this software. You download the Turbo C, this software. Okay, Turbo C software. C++ डाउनलोड किया तो भी चलेगा. Turbo C++ for Windows. Okay. As per your operating system, download your software. Turbo C or Turbo C++. Then install. To install the software, simple click, double click on the that, and yes करके next करना है. Okay. I already installed the software in my system. Okay, and if you not get the download link, then I send the link in the first practical description in Google Classroom. Okay, Google Classroom के description में मैं एक आपको link दे दूंगा, वहाँ से आप ये download कर सकते हो. 2 MB का software. Okay, so this software is required to execute the C program. Next one, first we see the two programs in first practical. There are 4 programs are given. Write a program to add 2 integer numbers, and second one is write a program to find area and volume of sphere. ये दो program हम first practical में देखने वाले हैं. आपको first practical में दो program and next two are exercise आपको try करने हैं. Okay, then first the practical significance is this practical is useful for the student to understand procedure for writing, compiling and executing the simple C program. आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है? C प्रोग्राम कहाँ पे लिखते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, एग्जीक्यूटिंग उसका कैसे होता है. आफ्टर completion of this practical, student will understand able to write C program using constant variable and arithmetic expression. ये प्रैक्टिकल के बाद आपको C program आना चाहिए with constant variable and arithmetic operation. So these are the practical significance. And then next, the student will understand step for compilation and execution of the C program. Then really program outcomes, basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tool. These are the program outcomes. Okay, write algorithm for given program, draw the flow chart. All these things we are studying in the theory also. ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है हाउ टू राइट द प्रोग्राम एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, सी प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, आई ऑलरेडी टाइप दिस प्रोग्राम. ओके, दिस इज सिंपल प्रोग्राम. आपको यहाँ पे नहीं टाइप करना है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे टाइप करना है. टर्बो सी, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे टाइप करके रखा है मैं. ओके, so this is first program. Which program? Addition of two numbers. ये जो आपका फर्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स. सो उसका प्रोग्राम ये है. ओके, सो फर्स्ट टू आर द दिस इज कॉल्ड एज हेडर फाइल. ओके, हेडर फाइल का है, ये सब चीज आपके लिए नई है. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड क्लियरली. इफ यू नॉट अंडरस्टैंड देन आस्क मी आल्सो. ओके, सो फर्स्ट टू आर द हेडर फाइल. हेडर फाइल
is written in hash include then angle bracket. Inside angle bracket write the header files. First header file is stdio.h and second header file is conio.h. Okay. Full form of the stdio is standard input output. What is the full form? Standard input and input output. Okay, so this is the full form of stdioh. Okay, then what is the full form of conio.h? Console input output. This is the full form of these two. These are the two header files, stdio.h and console.h. Full form also very important. Console input output and standard input output. Okay, why we define these two header files? Because these are the header files which we can also call as these are some libraries. Okay, inside the libraries there are different functions. Okay, so if I use some function in my program that time from the given library, अगर ये library से मैं कोई function use कर रहा हूँ मेरे program में तो मुझे ये library यहाँ पे define करना जरूरी है. Just example देखो, printf and scanf. Okay, so printf and scanf are the two function input output function. ये हम लोग बाद में भी देखने वाले theory में. printf and scanf is the two function which are from which library? stdio.h library. तो ये मैंने मेरे प्रोग्राम में यूज किया है इसलिए मुझे यहाँ पे ये हेडर फाइल डिफाइन करना है. इफ आई नॉट डिफाइन दिस फाइल एंड आई यूज printf and scanf, that program defined there. Why? Because we use this function from this library and library is not defined. Okay, so similarly conio.h have these two functions, clear, clr, ser and getCL. These two functions are from conio.h. So when you use any function from library, that time it must to define the library in header files. Okay, so these are the two header files. Then void main, this is main function. Okay, every C program have one main function. Okay, without main function you cannot write C program. Okay, so ये main function है, ऐसे ही लिखते हैं इसको void main. Void is the return type. If the function not return any value, that time we write void. And if function returns something like integer, कोई number आपको वो दे रहा है तो उसको वहाँ पे आप according to that we change the return type of the function. Okay, तो ये हो गया. क्लियर नहीं समझेगा लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अभी क्योंकि ये आपको सी प्रोग्राम बहुत सी प्रोग्राम लिखना है तो ये तो सिंपल स्टार्टिंग है. ओके, अब दो तीन प्रोग्राम हो जाएगा तो आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या क्यों लिख रहे हैं हम लोग. क्यों लिख रहे हैं stdio और conio? बिकॉज इस लाइब्रेरी में कोई फंक्शन है. बेस्ट में एक एग्जांपल दे दो आपको. कॉलेज में एक अपना लाइब्रेरी रहता है. ओके, इनसाइड कॉलेज वन लाइब्रेरी. इन लाइब्रेरी देयर आर वेरियस बुक्स ऑफ डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट का बुक रहता है. तो ये ध्यान में रखो. ओके, अगर मुझे सिमिलरली देयर इज वन सी लाइब्रेरी. Inside C library there are various sub library stdio.h, conio.h, math.h, and inside that there are various subject of various books. Okay, so simple understand this flow. College library, then various department and then various subject. Here we use the C library. Inside C library various sub library and inside sub library various functions. So stdio.h में printf scanf है, conio.h में getch and clear clr scr है. तो इसके लिए हमने ये यहाँ पे डिफाइन किया. देन अभी नेक्स्ट और प्रोग्राम इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर का एडिशन करके वो डिस्प्ले करना है. तो वहाँ पे अपने को कुछ वेरिएबल चाहिए स्टोर करने के लिए नंबर. तो मैंने दो नंबर स्टोर किए, इंटीजर a एंड b. अभी व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर मीन्स कंप्लीट नंबर विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट. ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट है. इंटीजर मीन्स एग्जांपल में लूंगा 25 इज द इंटीजर, कॉमा सेकंड एग्जांपल 45. these are the example of integer. Then next, if I use float, float means which type, which having some point number 2.4. this is floating float value. 5.8 this is float value.
And next one, character means this is called data types in C. These three are the data types. Mainly we use these three. A is the character. Second, next one, B character, capital X character. So these are the various types of data type in C. तो दो नंबर जो लेने वाले हैं वो हम कंप्लीट नंबर लेने वाले हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इंटीजर। ओके, सम भी इंटीजर में आएगा तो उसके लिए भी एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिया, INT A, B, C। ओके, देन नेक्स्ट वी यूज वन फंक्शन CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। अभी ये जो फंक्शन है यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, जो भी आउटपुट स्क्रीन रहेगा उसमें अगर कोई डेटा है पहले से तो उसको क्लियर करके अपना आउटपुट डिस्प्ले करेगा। printf is the output function which display the message। ओके, इसमें जो भी आप मैसेज यहाँ पे लिखोगे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, printf, तो ये मैसेज आ जाएगा। देन scanf is used to store the input। ओके, जब ये मैसेज आएगा स्क्रीन पे, एंटर द नंबर, फर्स्ट नंबर, दैट टाइम क्या होगा, यूजर एक नंबर एंटर करेगा। ओके, तो दैट नंबर इज स्टोर इन, कहाँ पे स्टोर करना है, फर्स्ट नंबर ए में, तो उसके लिए डबल कोट %d इज द एक्सेस स्पेसिफायर वी सी इन थ्योरी आल्सो। इंटीजर रहेगा तो %d यूज करते हैं, फ्लोट रहेगा तो %f, एंड कैरेक्टर रहेगा तो %c। बेसिकली अभी तक यही ध्यान में रखो। ओके, तो %d कॉमा एंड इज द ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर कहाँ पे स्टोर करना है, ए, सो राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड इज वन एड्रेस ऑपरेटर। सिमिलरली printf एंटर द सेकंड नंबर, यूजर सेकंड नंबर एंटर करेगा, कहाँ पे स्टोर करना है, बी में, सो %d डबल कोड में %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर एंड बी। ओके, तो इनपुट स्टोर हो गया ए एंड बी में, फर्स्ट नंबर स्टोर हुआ ए में, सेकंड नंबर स्टोर हुआ बी में। देन नेक्स्ट वन, सम, ये सम का एडिशन कहाँ पे स्टोर कर रहा है, सम में, सो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, स्टोर हो गया उसका जो भी एडिशन रहेगा। देन अगेन आई वांट टू प्रिंट आउटपुट, सम का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। ओके, विथ मैसेज, तो मैंने क्या किया, प्रिंटफ, अगेन डबल कोट में मुझे जो मैसेज प्रिंट करना है वो एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू। ओके, यहाँ तक आपका वही एज इट इज प्रिंट होगा। %d, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक %d, क्योंकि मुझे %d क्या यहाँ पे सम प्रिंट करना है, तो सम इज कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो वहां पे %d लिखा और कॉमा करके यहाँ पे सम। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है, जो भी कुछ सम में रहेगा वो किधर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड गेट ch is the last function it used to hold the output screen, यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम टू ऐड द टू नंबर्स। ओके, सो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपको कहाँ पे टाइप करना है, फर्स्ट ओपन दिस, एक इंस्टॉलेशन के बाद ये आपके स्क्रीन के ऊपर टर्बो सी का आ जाएगा। ओके, देन फाइल ओपन, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, experiment 1A। ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम, यहाँ पे आपको प्रोग्राम टाइप करना है। ओके, सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ओके, देन कंपाइल, दो स्टेप है, फर्स्ट वन इज कंपाइल, कंपाइल के लिए शॉर्टकट है Alt F9। ओके, कंपाइल मीन्स इफ एनी एरर इज देयर इन योर प्रोग्राम, कुछ एरर रहेगा तो वो फाइंड करेगा। ओके, कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा टाइपिंग में, कुछ भी रहेगा तो वो आपको डिफाइन करेगा। और सेकंड स्टेप इज रन मतलब इफ रन द प्रोग्राम, शॉर्टकट कंट्रोल F9। ओके, तो आउटपुट दिखा देगा आपको। फर्स्ट करते कंपाइल, एरर 0 है, प्रेस एनी की, सेकंड रन किया, कंट्रोल F9। ओके, सो आउटपुट आएगा। ओके, सो फर्स्ट मैसेज एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 20। ओके, देन एंटर सेकंड नंबर 10। so that is the output, addition of two number is equal to 30। okay, so this is the execution of first program। okay, so first program हो गया। next we see the second program, which is second program, area and sphere, area and volume of sphere। okay, so first of all understand these two formula।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर मतलब आर क्यूब। ओके, तो आप सी में आर क्यूब नहीं लिख सकते, उसमें उसके लिए भी फंक्शन है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में देखने के बाद आप यूज करो वो फंक्शन। यहाँ पे आपको आर क्यूब नहीं लिखना है, लिखते टाइम आर करना है, 3 बार आर का मल्टीप्लिकेशन। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू पाई इंटू आर। ओके, सो दिस टू फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैथ आपको एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, so now start this program. First two header files are same. Why? Because we use the printf, scanf and getch function. Okay, void main also same main function. Then एक integer लिया मैंने यहाँ पे r, r में मैं यहाँ पे radius स्टोर करूंगा। ओके, सो सिंपल। व्हाट इज द इनपुट? इनपुट क्या लगने वाला है यहाँ पे? ये तो आउटपुट है, वॉल्यूम एंड एरिया आपको फाइंड करना है। तो इनपुट में 4/3 जो फिक्स, पाई का वैल्यू फिक्स है, सिर्फ अपने को क्या लगेगा? रेडियस। ओके, तो रेडियस को r ले लिया वेरिएबल। R is the variable. Okay, which type variable? Integer type. Means it only store the complete number. ये ध्यान में रखो, integer, float and character. और उसके बाद में float. अभी why I use the float? Why? Because the volume may be after calculation it is maybe in float value. Area भी float में आ सकता है. Why? Because this formula. This for a formula में मैं पाई का वैल्यू गया 3.14। ओके, तो उसका कैलकुलेशन होने के बाद मे बी इट इज इन फ्लोट। इंटीजर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको फ्लोट में कंसिडर करो तो आपको परफेक्ट आउटपुट दिखाएगा। अगर इंटीजर ले लिया तो इट नॉट डिस्प्ले द फ्लोटिंग पार्ट, मतलब वो अगर ये मेरा आउटपुट है तो सिर्फ वो 3 दिखाएगा, 0.14 को कैंसिल कर देगा। ओके, अगर आपने ये इंटीजर डिफाइंड। ओके, सो फ्लोट ले लो, क्योंकि मे बी वो फ्लोट में आ सकता है वॉल्यूम एंड एरिया। पाई का वैल्यू पहले ही डिफाइन कर दिया मैंने, पी आई पाई इज इक्वल टू 3.14। देन आई यूज CLR SCR फॉर क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। देन नेक्स्ट आई टेक द इनपुट प्रिंटर, एंटर द रेडियस। ओके, तो यूजर रेडियस का वैल्यू एंटर करेगा, कहाँ पे स्टोर करना है मुझे? आर में। सो क्या करूँ? %d, why? Because it is the integer, %d comma and address operator and r. नेक्स्ट राइट द टू फॉर्मूला एरिया। ओके, एरिया के लिए जो वेरिएबल है वो ही आपको यहाँ पे लिखना है, एज इट इज, कैपिटल और स्मॉल, जैसा यहाँ पे डिफाइंड किया वैसा ही लिखना है। 4 इंटू पाई इंटू आर। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर। ओके, 4/3 का हम ले लेते हैं 1.33, ये लिया तो भी चलेगा, नो इशू, उसका वैल्यू परफेक्ट आएगा। ओके, देन प्रिंट एफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू %f। वाई यहाँ पे %f क्यों लिया, %d क्यों नहीं लिया? बिकॉज एरिया आपको डिफाइन करना है। एरिया कौन सा टाइप का है? फ्लोट का है, सो यहाँ पे %f। वॉल्यूम भी फ्लोट में, सो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू %f। लास्ट में गेट ch सेव कर दिया पूरा। आपको किधर टाइप करना है? यहाँ पे नहीं टाइप करना है, इधर टाइप। नोटपैड में मैंने क्यों टाइप किया? एक्सप्लेन करने को। ओपन करो एक्सपेरिमेंट 1B, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है ये प्रोग्राम। ओके, तो फर्स्ट कंपाइल के लिए Alt F9 कंपाइल हो रहा है, देयर इज नो एरर, एंड कंट्रोल F9। ओके, रेडियस अगर 5 डाल दिया, ओके, तो एरिया ऑफ स्फीयर 314 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 522। ओके, तो दिस इज द सिंपल फर्स्ट प्रैक्टिकल। Try to execute the turbo C and execute the first program, and the two practical and other two programs try to run on the as an exercise, and thank you.